जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। यहाँ बाहर आते ही हमें कुछ रिक्शा वाले नज़र आ जाएंगे। ये काफ़ी सारे रिक्शा यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से 10 रुपये के ई रिक्शा आपको कहीं के लिए भी मिल जाएंगे। तो चलिए एक ई रिक्शा हम भी अपने लिए ढूंढते हैं। ओल्ड गुप्ता चौक कहाँ पर? कितने रुपए? 200 हाँ। ई रिक्शा मिलने के बाद हम लोग यहाँ से ओल्ड गुप्ता कॉलोनी की तरफ को जा रहे हैं, जहाँ पर ओल्ड गुप्ता चौक है। यहाँ सामने हडसन लेन स्टार्ट हो गई। यहाँ पर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ आपको दिख सकते हैं। तो नॉर्मली बच्चे लोग यहाँ पर काफ़ी चिल करने के लिए या फिर कभी पार्टीज़ वगैरह करने के लिए सामने आते हैं। ये पूरा हडसन लेन मार्केट है, देख सकते हैं। काफ़ी सारे कैफ़ेज़ यहाँ पर हैं। और ये हम ओल्ड गुप्ता कॉलोनी की तरफ को निकल चुके हैं। यहाँ से बेसिकली जीटीबी नगर से ये जगह लगभग 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। यहाँ से स्टूडेंट हाउसिंग स्टार्ट हो जाती है। इधर काफ़ी सारे आपको देख सकते हैं। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे होमस्टे यहाँ पर हैं। काफ़ी शांत एरिया है और स्टूडेंट्स के रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। ये यहाँ का फेमस ओल्ड गुप्ता चौक है, यहाँ पर राजू टेटी। ओल्ड गुप्ता चौक पर काफ़ी सारे चाय के पहुँचे, तो आप देख सकते हैं भीड़ बहुत है। काफ़ी सारे सामान की दुकानें यहाँ पर हैं। मार्केट एरिया यहीं पर है, तो सामान लेने के लिए या मार्केट जाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। नियर बाई मार्केट है। काफ़ी शांत इलाका है बच्चों के रहने के लिए। कुछ शोर शराबा नहीं है, आप रह के पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई का माहौल पूरा यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि गलियों में बहुत आवाज़ें रहती हैं, बहुत चिल्लम चिल्ली रहती है काफ़ी जगह पर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। चुके हैं विद्या निवास के बिल्कुल बाहर, और विद्या निवास कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें कि फर्स्ट फ्लोर पर ये ओनर लोग खुद रहते हैं, पंकज सर, और उसके ऊपर बच्चे पीजी में रहते हैं। तो डू दिस गेट ओपन्स राइट, this is the entry. When we enter, we have a common area. At this common area, as PG is restricted with boys entry and our father mother entry, so this is common area here. My friends could sit and chill. My parents could come and sit and chill. So this is the common area. Now moving further. Okay, so let me show you our gym. Gym is amazing. I personally use gym daily. So this is cycling, this is treadmill. Also we have projector. We just watch movies sometimes, not very regularly, but gym is amazing. I can do. Also we have AC, proper ventilation. So yeah, this is our gym. Now moving forward. From here we have our owner's first floor. Our owners stay at first floor. We have biometric entry. We use thumb impression to enter. As in case we have 10 PM restriction, we can't enter after that. So we use biometric entry for every entering. So this is our first floor where our owner stays. Cheese Kovita. This is our owner's place. It's very safe. We have them all
way around. We ask them for every help. They are very cooperative. Bhaiya bhabhi is amazing. For every small बीमारी से लेकर छोटी छोटी चीज़ें, they provide us everything. So this is not very professional thing. You guys will see professional PGs जहाँ पर people don't guide you, people don't help you after you take PG, but they are very helping. They help you throughout. It's like family. So yeah. Now I'll show you my room. It's on 4th floor. This is lift. And it's always working, let me tell you guys. Now we are visiting our floor, which is 4th floor, my room. Okay, come, I'll show you my room. See, the PG is quite spacious. You won't get this kind of area in every PG. Every PG has very congested rooms. They use every space to build. But we have this area also. We can sometimes sit here and chill out. So this is spacious. Okay, coming to my room. So this is my room. I stay in double-seater. So my room is good, spacious, nice. We have 2 cupboards. Also the beds are comfortable enough. The most important part is we get pura window in the room, which you won't get anywhere else. So I don't feel सर्दियों में धूप आती है मस्त, तो हम धूप में बैठ जाते हैं, और गर्मियों में we have AC. तो I तो just love my window वाली चीज़. You won't get इतना पैसे में, you won't get this kind of room anywhere in North Campus, let me tell you. Okay, also we have balcony, which is also very spacious. It's very spacious. We sit at nights on chair. You can see the chair lying. Also, what else? कभी-कभी I feel double-seater में you are not able to study properly, so we have library option as well. Personally, I have choose this PG because of library and gym, and both are very well maintained. I go to library to study sometimes. When I feel bored studying in my room. Otherwise I have table and all, I study here, and it's very, यहाँ पूरा धूप आ रहा है, अच्छे से पूरी लाइट आ रही है, तो कोई लाइट का इशू भी नहीं है. वी हैव 2 लाइट्स, तो अच्छे से पढ़ाई भी हो जाती है. टेबल चेयर दिया है इन्होंने, टेबल चेयर पे भी बैठ के पढ़ सकते हो. दे हैव गिवन अस एनफ स्पेस टू कीप आवर बुक्स. हमने बुक्स रखी है अच्छे से. ऑल्सो द स्टैंड्स में सारा सामान अच्छे से आ जाता है, जो साइड वाला सामान है. या बेड बॉक्स है. बेड बॉक्स में वी कैन कीप हमारे बड़े बैग्स. तो सामान इज़ वेल मेंटेन्ड. रूम इज़ स्पेशियस. वी हैव बैल्कनी एंड वी चिल. ऑल्सो द एडेड पार्ट इज़ हमारे पास ऊपर कैफेटेरिया भी है. कभी कभी वी गो एंड सिट देयर, तो वो भी काफ़ी अमेजिंग है. लेट मी शो यू दैट ऑल्सो. वी गेट बुफ़े, यहाँ पर खाना लगता है. आज वी हैव छोले बहुत टेस्टी बने थे. छोले वॉज अमेजिंग. बेसिक चावल एंड रोटी. वी गेट 1 सब्जी इन लंच एंड 2 सब्जी इन डिनर. रियली अमेजिंग. यहाँ पर हम सीरियसली रात को आकर इतना चिल करते हैं. यहाँ बैठते हैं, ये वाला गेट खोल लेते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन होती है. अच्छा मौसम होता है तो मौसम इन्जॉय करते हैं. यहाँ पर वी हैव एनफ बेंचेस टू सिट. Also we have microwave, AC, LED. We sometimes watch something. Dispensers are very much properly placed dispensers. Coffee machine भी है. हेलो गाइज, अभी मैं बैठा हुआ हूँ विद्या निवास के कैफेटेरिया में, और हमारे साथ हैं विद्या निवास के 2 टेनेंट, स्निग्धा जी और ऋषिका जी. ये दोनों यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि इनसे अच्छा रिव्यू इस पीजी के बारे में कोई नहीं बता सकता. तो मैं आज इनसे रिव्यू लेने आया हूँ कि कैसा ये पीजी है, क्या क्या चीज़ें हैं. कुछ क्वालिटी चेक्स होते हैं, तो उन्हीं क्वालिटी चेक्स के ऊपर इनसे भी बात करेंगे. तो सबसे पहले इन लोगों के पर्सनल चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या ये अभी कर रहे हैं और कौन क्या कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं. तो स्निग्धा जी, आप क्या कर रहे हैं अभी? आई एम डूइंग MBA फ्रॉम DU. ऋषिका जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
I've completed my masters from DU and तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको यहाँ पर आप रहते हैं काफ़ी टाइम से, तो कभी आपको इधर उधर जाना होता है तो कैसे मतलब जाते हैं? कुछ आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आप जाते हैं, मेट्रो कितनी दूर है, और ई रिक्शा वगैरह कितने मिलते हैं, टाइम पे मिलते हैं या नहीं मिलते, उसके बारे में कुछ बताइए। पहले आप बता दीजिए स्निग्धा जी। इट जस्ट 2 गली अवे रिक्शा बाहर से मिल जाती है। वी हैव हडसन लेन यू ऑल गाइज नो इज़ हब ऑफ कैफे, सो वी चिल आउट हडसन लेन में जाके। ऑल्सो GTB मेट्रो स्टेशन इज़ क्वाइट क्लोज टू अस। रिक्शा मिलता है 10 रुपये का। वी ट्रैवल टू मेट्रो इन लाइक 5 मिनट्स। सो या दैट्स द ट्रैवलिंग थिंग। ऑल्सो DU तक जाने के लिए, अपने कैंपस तक जाने के लिए भी ई रिक्शा मिल जाता है बाहर से, विच ऑल्सो टेक्स हार्डली 5 to 10 minutes टू रीच आर वेरियस कॉलेजेस। So traveling is quite easy. You can just by walk go to road and take e-rickshaw. एक चीज़ आती है सिक्योरिटी की। अगर गर्ल्स पीजी में बात करूँ तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो सिक्योरिटी के ऊपर मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, यहाँ पर कैसा लगता है आपको सिक्योरिटी वाइज? क्या है इस पीजी की चीज़ें? पीजी में CCTV वगैरह का क्या है, एंट्री इन आउट का क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें कुछ बताइए, आप बताइए। I feel very secure here because यहाँ पे like you live with a family. This PG, living in this PG is like living with your own family. आंटी जैसे मतलब कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, she knows everything and she keeps a check on each and one of us कि कोई प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स को हम वो बता सके। एंड टाइम तो ये होता है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो बता के जाओ एंड बी बैक बाय 9:30। उससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। सो या इट्स गुड। तो एक फैमिली वाली फीलिंग आपके पास यहाँ पर है। फर्नीचर वगैरह मतलब क्या है कि रूम में आपको रहना है तो एक घर से दूर आते हैं तो बेड वगैरह, आपको टेबल वगैरह चाहिए होती हैं, फर्नीचर जो है बेड में गद्दे अच्छे होने चाहिए, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर कैसी हैं? मतलब आपको कभी अगर कोई दिक्कत भी आती है, मान लीजिए कभी क्या होता है कि फर्नीचर कुछ टूट जाता है या कुछ ख़राब हो जाता है, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी टूट जाता है तो वो कितने टाइम में आपका रिजॉल्व हो जाता है, या क्या क्या चीज़? 3 days मैक्स। आपका भी? ओके। तो मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं कि आपके अलग हो, तो अगर ऐसा हो कि आपको दोनों को ऐसा लगता हो कि नहीं ये कुछ चीज़ें अलग हैं तो आप वो भी बता सकते हैं हमें। तो एक चीज़ और होती है कि वॉशरूम जो होती हैं गर्ल्स पीजी में हम देखते हैं तो वॉशरूम साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। वो बहुत मेजर इशू लड़कियों को रहता है पीजी के अंदर। तो उसके ऊपर आपका क्या है कि यहाँ पर वॉशरूम कैसे हैं, साफ़ रहते हैं, और सफाई होती है तो कितने टाइम में होती है? वॉशरूम्स बहुत साफ़ रहते हैं। आंटी हैं वो आती हैं डेली ऑन डेली पर्पस, वो अच्छे से पूरा टाइल क्लीन करके जाती है, तो इट्स वेरी क्लीन। ऑल्सो आंटी को बोल देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इंस्टेंटली चेक करती हैं। और अभी हमारा कुछ फ्लश का इशू भी आ गया था, टू बी ऑनेस्ट, तो उन्होंने बहुत ही इंस्टेंटली बुला दिया था प्लम्बर को और ठीक करा दिया था। तो इट्स वेरी नाइस। आंटी आर वेरी कोऑपरेटिव। सैनिटरी इश्यूज में यस, बिकॉज लाइक आई हैड प्रॉब्लम्स, तो आई वाज लाइक मुझे जेड चाहिए लगवा के, एंड आंटी ने इमीडिएटली मुझे जेड लगवा के दिया। आई वाज लाइक मुझे मिरर चाहिए, शी इंस्टॉल द मिरर फॉर मी। लाइक जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट एंड दे मे टेक टाइम। लाइक 3 दिन तो लग जाते हैं किसी भी चीज़ को, 3-4 दिन, बट या इवेंचुअली यू विल गेट वट एवर यू वांट। तो जैसे कि बच्चे भी इनके ओनर के आपके साथ ही रहते हैं, तो ये इनके बारे में क्या कहेंगे आप? They are literally stress buster, guys. Yes. मतलब you will love the most about this PG is their kids. They are amazing. भाभी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ तुम्हें ऐसे फैमिली वाली फीलिंग आएगी. You won't feel that you are away from home. It's not professional, as I have already told you. It's not professional. The kids are amazing. You will see her. She is just wandering around, and she always do. अपन बात करेंगे वॉशरूम वगैरह की, बात कर ली, सिक्योरिटी की बात कर ली, उसके बाद हम बात करेंगे कि खाना जो है, खाना सबसे मेजर रहता है। मिथ है एक कि खाना पीजीज में बेकार मिलता है, कि खाना नहीं मिलता अच्छा, तो वो मिथ को आप कैसे? हाँ, ये चीज़ें रहती हैं, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? See again the same thing कि ऑनर नीचे ही रहते हैं, तो दे कीप कंप्लीट चेक हर चीज़ पे, फ्रॉम मॉर्निंग टू डिनर दे टेक केयर ऑफ एवरी स्टफ। उनके हाथ से निकलता है सब वेजिटेबल्स जो भी यूज़ हो रहा है खाने में। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स देख रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है व्हेन वर्कर्स आर ऑल कीपिंग कंट्रोल। बट यहाँ पर ऑनर देखते हैं तो घर जैसा खाना मिलता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऑल्सो खाना 4 टाइम मिलता है, 2 सब्जियाँ मिलती हैं, बीच बीच में हमें स्नैक्स बहुत अच्छा मिलता है डेली, और बीच बीच में वी गेट डेजर्ट, फ्रूट्स, शेक्स, राइट, जूसेस,
And बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज वो लोग भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं. इट्स नॉट लाइक सब अलग अलग बन रहा है. दे हैव द सेम फूड दैट वी हैव, सो ऑब्वियसली फैमिली वाला खाना जो होता है वैसा मिलता है। तो फूड क्वालिटी तो ये हो गई. मेन्यू कैसा है, मतलब फूड का मेन्यू जो आपका होता है वो आप डिसाइड करते हो या फिर ओनर डिसाइड करते हैं? और अगर करते कोई भी करता है तो वो मेन्यू कैसा बना हुआ है? रिपीटेड खाना है कुछ या फिर अलग अलग है? अलग अलग है, पूरे हफ्ते का ऑनर ने मेन्यू डिसाइड किया हुआ है, तो उन्होंने सब कुछ ऐड किया हुआ है. इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड. फ्रूट से लेके शेक से लेके डेजर्ट से लेके दे हैव एडेड एवरीथिंग इनटू द मेन्यू. यू वोंट गेट बोर्ड ऑफ द मेन्यू. द डिनर, द स्नैक्स, एवरीथिंग इज गुड. वी हैव ईजी पीजी ऐप. उस पर आप डिनर पूरा ऐसे मेन्यू भी देख सकते हैं. इतना तुम्हें प्रॉपर सिस्टम का ही मिलेगा गाइस. फूड मेन्यू हमने कर लिया है. फैसिलिटीज़ जो रहती हैं पीजीज में, जो स्टार्टिंग में फैसिलिटीज़ बताई जाती हैं कि आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो फैसिलिटीज़ कई बार क्या होता है कि पीजी में मिलती नहीं है या फिर कुछ डिले होता है, तो उसके बारे में इनसे बात करेंगे कि फैसिलिटीज़ कैसी मतलब यहाँ पर हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं पीजी के अलावा, मतलब ये खाना क्लीनलीनेस के अलावा, और कुछ एड ऑन फैसिलिटीज़ है तो वो आपसे पूछेंगे. और वो फैसिलिटीज़ जो पहले बताई गई थी क्या वही चल रही हैं? हाँ, इनफैक्ट उससे बेटर ही है. कुछ ना कुछ वो बताते हुए मिस कर देते हैं, बट एज वी हैव टोल्ड ऑनर नीचे ही रहते, तो हम उनको जाके बोलते हैं कि आंटी दिस, तो दे प्रोवाइड अस विद एवरीथिंग. और फैसिलिटीज़, हाँ, जिम, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी, फूड, रिपेयरिंग इशूज़, as I've showed you, room also, balcony और सब चीज़ें, everything is nice. Fridge, oven, cafeteria we are sitting in. पिज़्ज़ा वाला ओवन वो स्पेशल उन्होंने दिया हुआ है. कॉफ़ी वाला भी है. डिस्पेंसर्स हैं. तो जितना जो फैसिलिटीज़ लिखा है उससे ज़्यादा ही है. एसीज़ हैं, यहाँ पर भी एसी लगा हुआ है. एवरी कॉमन रूम हैज़ एसीज़. जिम में यू गाइज हैव सीन प्रोजेक्टर एंड ऑल भी लगा हुआ है. तो जिम तो इज़ अमेजिंग. साइकिलिंग, ट्रेडमिल बिल्कुल वर्किंग है, हम डेली यूज़ करते हैं. सो फैसिलिटीज़ आर फाइन. एक बात, लाइब्रेरी बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है, इट इज़ फुल ऑफ बुक्स. लाइक आई माई सेल्फ हैव बॉरोड सो मेनी बुक्स फ्रॉम देयर. सो लाइक हर बच्चा जाके जिसका भी पढ़ने का मन हो, देन दे कैन गो एंड टेक द बुक दे डिज़ायर. वहाँ पे बैठ के भी AC इज़ इंस्टॉल देयर ऑल्सो. यू कैन सिट देयर, यू कैन स्टडी और अपने रूम में लेके आके पढ़ सकते हो. डिजिटल पीजी चेक के बारे में बात करेंगे कि इनका पीजी कितना डिजिटल है, क्या क्या चीज़ें डिजिटल इनके पीजी में कर सकते हैं ये, और अगर उसका कोई फ़ायदा है तो वो भी ये बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं. तो डिजिटली आपका पीजी कितना एडवांस्ड है? ईजी पीजी ऐप है ना गाइज, उस पर तुम जाओगे तो वहाँ से हम रेंट पे करते हैं. वी ऑल्सो गेट कैश बैक समटाइम वहाँ से. तो तुम्हें ऐसा कैश नहीं देना हमेशा. यू कैन ऑनलाइन ट्रांसफ़र थ्रू दैट ऐप. ऑल्सो तुम मेन्यू देख सकते हो उससे, मैंने पहले भी बताया है. और पीजी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर तुम सारा ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो. आप अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें तो क्या क्या डिजिटल मतलब यहाँ पर है? ऐप के बारे में या कुछ? द ऐप, लाइक मैं पहले भी लाइक यहाँ पे रह चुकी हूँ, बट व्हेन आई केम टू नो कि द सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड स्टफ हैपेंस थ्रू एन ऐप, ईजी पीजी. तो जब मैंने इंस्टॉल किया, आई सॉ कि हर एक स्टूडेंट का वेरिफिकेशन वगैरह ऐप से ही होता है. एंड लाइक कभी अगर ऐसा होता है कि रेंट पे करते टाइम यू हैव ड्यूज लेफ्ट, या फिर आप भूल जाते हो कि लास्ट मंथ पे नहीं करा है या इस मंथ का पे करना रह गया है, सो दे गिव यू द नोटिफिकेशन दैट यू हैव लाइक योर रेंट ड्यूज, तो प्लीज़ पे इट ऑन टाइम. तो इससे टाइम में भी हो जाता है. एंड मोर और लेस इट इज़ अ गुड थिंग. तो एक चीज़, स्टाफ की बहुत दिक्कत लोगों को आती है पीजी में कि स्टाफ उनसे कैसे बात करता है या क्या क्या चीज़ें स्टाफ की रहती है. तो स्टाफ बिहेवियर के बारे में क्या कहेंगे आप? स्टाफ कैसा है यहाँ पर? स्टाफ बिहेवियर ऑनेस्टली भैया है हमारे एक जो सब हैंडल करते हैं. वो तुम्हें रात को 2 बजे भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है ना हॉस्पिटल जाना है, तो ही टेक यू. और अभी वैक्सीनेशन के टाइम पे मुझे कोविड टेस्ट कराना था, मुझे कहीं अर्जेंटली ट्रैवल करना था, तो ही टुक मी इंस्टेंटली. लिटरली इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस. तो ऑल्सो वैसे भी कुक वगैरह भैया सब लोग आर वेरी नाइस, very friendly stuff. Very friendly. Even I had to get my vaccination during the like second lockdown के time पे ही था. तो I asked आंटी कि आंटी प्लीज लाइक उबर वगैरह भी मिल नहीं रहे हैं, तो द भैया took me. Everyone is very friendly. यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि स्टाफ की तरह रह रहा है, स्टूडेंट सब एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह रह रहे हैं. That's the best part. एक और बात आती है जो बहुत
इफेक्ट करती है चीज़ों को पीजी में, वो होती है कि प्राइस क्या है पीजी का, क्या प्राइस रेंज है। तो प्राइस रेंज क्या लगता है आपको, मतलब प्राइस जो आपका प्राइस आप पे कर रहे हैं, पहले तो वो प्राइस आप क्या पे कर रहे हैं और क्या लगता है कि वो प्राइस आप जो पे कर रहे हैं वो सही पे कर रहे हैं, ठीक पे कर रहे हैं, वर्थ है वो? आई एम पेइंग 14,000 मेरे डबल सीटर का। वर्थ है, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ। इतना कंफर्टेबल फील होता है। आई डोंट फील मुझे कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत है किसी और चीज़ की। आई जस्ट हैव टू स्टडी। मुझे सब कुछ मिलता है बैठे बैठे, क्लीनलीनेस से लेके अच्छा खाना। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो घर वालों का ऐसा नहीं है कि एकदम भाग के आना पड़ता है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। सो 14,000 में इतना अच्छा, तो आई गेस विद लिफ्ट भी है पीजी में, जिम, लाइब्रेरी, तो वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है इनफैक्ट। और रूम में बालकनी है, इतनी खुली डुली बालकनी है, इतना स्पेशियस पीजी है। यू वोंट गेट इतना स्पेशियस पीजी इन 14,000। नॉर्थ कैंपस में तुम्हें 16-17 में लोएस्ट मिलता है ऐसा पीजी, ट्रूथफुली। आप भी सेटिस्फाइड है इस प्राइस से? आपका प्राइस क्या है? मेरा प्राइस है 15,000, डबल सीटर रूम है विद अटैच वॉशरूम एंड ऑल। सो या आई एम रियली सेटिस्फाइड। लाइक इतने में आई एम गेटिंग मोर देन व्हाट आई एम पेइंग। एक लाइब्रेरी मिल रही है, जिम मिल रहा है, प्रॉपर टेरेस जहाँ पे बैठ के आई कैन जस्ट चिल, उसके बाद द खाना एंड एवरीथिंग। सो या ऑफ कोर्स, एंड इवन दीस टू क्यूटीज, देयर इज वन मोर। ओके, तो मतलब इनके पीजी में क्या क्या चीज़ें इनको मिल रही हैं और कैसे इनका पीजी है, इसके बारे में हमने जाना और इनके पीजी को देखा भी, जैसे कि हाँ सीरियसली बताने ये चीज़ बात हो ही रही है, तो मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है फॉर सम रीजंस कहीं और, विच इज़ 1 घंटा यहाँ से दूर। बट आई एम लिटरली स्टेइंग हेयर यहाँ पर ज़बरदस्ती ऑन द पर्पज़ ऑफ कि मैं यहाँ से ट्रैवलिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। इतनी फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। 1 साल मुझे हो गया यहाँ रहते हुए। मैं आई थी फॉर 5-6 मंथ्स और अभी वो एक्सटेंड होते होते 1 साल हो गया, और अभी शायद मैं और स्टे कर लूँ जस्ट बिकॉज यहाँ का एनवायरनमेंट इज़ काफ़ी फ्रेंडली, तो अच्छा है, ऑनेस्टली अच्छा है। समथिंग लाइक few days ago I hurt my leg and auntie like उन्होंने अपने हाथों से she massaged my leg and all. She's like you'll get well, ये वो, she's like a mom, she takes care a lot. And then same here, I came here for 5 months. I was like मैं जून में चली जाऊंगी and here I am and I am planning to stay more. तो आपको मतलब एक फैमिली वाली फीलिंग जो वो है वो यहाँ पर मिल रही है और उसी के चक्कर में आप यहाँ पर रुके हो। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आपने बताया लोगों को कि कैसे पीजी यहाँ पर है और विद्या निवास कैसा पीजी है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जब लोग इसको देखेंगे तो शायद से उनको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि जब एक बाहर से बच्चा आ रहा है तो उसको पता नहीं होता कि क्या पीजी यहाँ पर मिलते हैं, क्या चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो हमारी यही मुहिम है कि ओनर अपने पीजी के बारे में ना बताए, क्योंकि ओनर का तो खुद की चीज़ है तो वो तो अच्छा बताएंगे, लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं बच्चे वो क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं या फिर कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, वो बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे ये इंटरेक्शन एक रखा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। बिल्कुल घर जैसा खाना ये है, मतलब जो मिथ है कि खाना अच्छा नहीं होता वो मिथ बस्ट हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छे मसाले का, कम मसाले का घर जैसा खाना ये है। और मैं खुद इसीलिए ट्राई करता हूँ ताकि आप लोगों तक सच में कैसा खाना है वो पता चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा खाना है। साथ हैं विद्या निवास के ओनर मैम, और आज हम मैम से जानेंगे कि कैसे वो विद्या निवास को रन कर रहे हैं और कितने टाइम से रन कर रहे हैं, बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, क्योंकि बच्चों से तो हमने रिव्यू ले लिया है, लेकिन ओनर अपने पीजी के बारे में क्या जानते हैं, इस पीजी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटीज़ उनको मिलती है बच्चों को, और क्यों ये मार्केट में दूसरों से अलग है, वो बातें आज मैम के साथ बात करके जानेंगे। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। और मैम आप बताइए कि कैसे मतलब विद्या निवास मार्केट में अलग है दूसरे लोगों से, और आप क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को देते हैं, और आपकी क्या मेन कोशिश रहती है बच्चों के साथ पीजी चलाने में, और कितने टाइम से आप पीजी चला रहे हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को? 10 साल हो गए होंगे पीजी चलाते हुए। मैं बच्चों के साथ ही रहती हूँ। बच्चों का पूरा लुक आफ्टर करना होता है। जैसे कि कोरोना आया, कोरोना में अगर जो बच्चे मेरे पास रुके, मैंने उनको पूरा ध्यान रखा, उनकी पूरी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा, उनके साथ अब तक पूरा है कि हम सेफली टाइम को निकाल सकें। तो
और यहाँ पे मेन अब भी है, कोरोना के टाइम पे बच्चे ज़रूर कम हुए थे, पर अब ये मेनली ये है कि हम बच्चे की हेल्थ का कोरोना से बचाते हुए ध्यान रखेंगे कि यहाँ बच्चों की पूरा उस तरीके से हो कि जिससे बच्चा अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके। मैम वैसे आपको कोरोना से पहले भी आप पीजी चला रहे होंगे, तो कितना टाइम हो गया पीजी चलाते हुए? मेरे को 10 साल हो गए हैं। 10 साल से मैं इस पीजी को चला रही हूँ। मेरा एक यहाँ है, एक मलकागंज में है। दोनों पीजी को लुक आफ्टर करते हैं, और गर्ल्स का पीजी है, बॉयज़ का पीजी भी है हमारे पास। पर मेन चीज़ है, मैं गर्ल्स पीजी को मेन रन आफ्टर करती हूँ। दूसरा पीजी मेरा बेटा देखता है, उस वो वाला पीजी। तो मैम फैसिलिटीज़ आप अपने पीजी में लड़कियों को क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं? मैं उन्हें 4 टाइम मील देती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट है और उसके अंदर बहुत कुछ प्रोवाइड करती हूँ। पास्ता देती हूँ, पोहा देती हूँ, और सवैयाँ वगैरह, परांठा हो गया, इस तरह से है। मिल्क तो देती हूँ साथ में। और दोपहर के खाने में दाल चावल सब्जी वगैरह सब कुछ, मतलब जो खाने में बच्चों को चाहिए वो दिया जाता है। इवनिंग में स्नैक्स देती हूँ। रात के खाने में भी दाल चावल सब्जी वगैरह होता है। और जो सामान जो होता है वो मेरी खुद की सुपरविज़न में मैं अपना खाना खुद बनवाती हूँ। वही खाना जो है कि हम लोग खुद भी खाते हैं, हम लोग वही टेस्टिंग मैं खुद खा के करती हूँ उसका, कि अपनी सुपरविज़न में खाना बनवाया हुआ, बना हुआ खाना नहीं देती, खुद बनवाती हूँ। तो मैम जैसे कि हमने तो बच्चों से भी रिव्यू करा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई पेरेंट यहाँ पर आते हैं बुकिंग के लिए, या कोई कभी आते हैं, तो आप उनको यहीं पर मिलते हैं? आप ही पीजी को दिखाएंगे हमेशा यहाँ पे? हाँ, मैं दिखाती हूँ पीजी, मैं दिखाती हूँ या मेरी डॉटर इन लॉ दिखाती है, क्योंकि हमारे 2 पीजी हैं। मैं दूसरे पीजी में जाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्योंकि मेरा रेजिडेंस 90 ओल्ड गुप्ता कॉलोनी है, तो यहाँ पे मेरी डॉटर इन लॉ भी होती है। मेरी फैमिली यहाँ रहती है, और मैं वो मलकागंज विद्या निवास चली जाती हूँ। तो मैम काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर क्योंकि बच्चे का जो हमने रिव्यू लिया, जिम वगैरह भी लगाया हुआ है हमने, दोनों जगह पे जिम है और स्टडी रूम दिया हुआ है कि बच्चे अपना साइलेंट प्लेस पे बैठ के वो अपना स्टडी करते हैं। अगर कोई उसके रूम में पर वो एक लिमिट टाइम तक उन लोगों को बैठने की पूरी फैसिलिटी दी जाती है यहाँ पे। प्राइसिंग वगैरह भी मैम हमने बच्चों से बात करी थी, तो प्राइसिंग वगैरह की भी हमने बात करी, तो प्राइसिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी है। बच्चों ने बताया कि वर्थ इट है वो प्राइसिंग। और मैम जैसे मलकागंज भी आपका पीजी है, तो मलकागंज में आपकी प्राइसिंग क्या है? ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, सारी की प्राइस एक ही है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ एक है। वो डिपेंड करता है बच्चा कौन सा रूम लेता है, रूम के हिसाब से उन लोगों को प्राइस वो दी जाती है। फैसिलिटी दोनों जगह की एक ही है। हाँ, तो मैम काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर और जैसे कि बच्चों को एक फैमिली वाली चीज़ चाहिए होती है। एक मेडिकल जो अगर बच्चा कोई होता है, मैं उनसे खुद डॉक्टर के पास लेती हूँ, और उसका जब तक पेरेंट्स नहीं आते बच्चा मेरी सुपरविजन में रहता है। हाँ जी, वो एक बच्चे से हमने बात भी कर रहे थे, तो उसने भी कुछ बताया कि उसके पैर में दर्द हो रहा था, तो आपने खुद मसाज वगैरह किया। तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब एक पीजी जैसे बिजनेस को, जिसमें लोग अभी बच्चों को बस आने के बाद छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है अब बच्चा आ गया, लेकिन आप एक फैमिली वाली फीलिंग बच्चों को दे रहे हो, तो काफ़ी अच्छा लगा। अपनी डॉटर समझ के उनके साथ वैसा ट्रीट करती हूँ। कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो मैं खुद सॉल्व करवाने की कोशिश करती हूँ। हम काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम हमारे लिए टाइम निकालने के लिए।